Hello everyone, welcome to my channel Dare to Dream. We are going to learn Health and Physical Education of Class 6 from the EMBOS syllabus. And we are going to discuss on chapter 4, that is Importance of Physical Exercise. If we want to remain healthy, we need to exercise every day. So if we really desire for a good health, we need to exercise every day. Exercise is the key to good health. So अच्छे सेहत का जो ताला है वो हम तभी खोल सकते हैं जब हम रोज एक्सरसाइज करें. It makes us healthy, happy and active. So exercise keeps our body and mind both healthy, happy and active. So as we came to know that exercise is so important for our health, we need to know now about the benefits of exercise, how exercise benefits us in several ways. Let us have a look at it. The first benefit of exercise is we do not fall sick easily if we do exercise every day. So the common illnesses like cold, fever, cough, etc., all those diseases remains away from us if we do exercise every day. We don't fall sick. The second benefit of exercise is it keeps us active and alert. So exercise keeps our mind as well as our body active and alert. We can do more and more work and our mind is also alert all the time if we do exercise every day. The third benefit of exercise is it increases our appetite. Appetite का मतलब है भूख. So when we do exercise, it increases our appetite. ये हमारी भूख को बढ़ाता है. जब भूख बढ़ाता है, हम ज्यादा खाना खाएंगे और धीरे धीरे हमारा हेल्थ improve होता रहेगा. We will get a good health through exercise. The fourth benefit of exercise is it ensures proper circulation of blood in our body. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ये हमारे बॉडी में ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको और अच्छे से करता है, इम्प्रूव करता है. क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का एक्सरसाइज होता है और हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी तरह से होता है, जिसके कारण हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं और हमारे हार्ट को हार्ट जो है हमारा वो ज्यादा ब्लड पंप करता है. तो इस तरह हम हेल्दी रहते हैं. The next benefit of exercise is we get sound sleep. Sound sleep का मतलब है अच्छी गहरी नींद. तो when we do exercise we get sound sleep. हमें बहुत अच्छी गहरी नींद आती है जब हम रोज एक्सरसाइज करते हैं. हमें रात को सोने में प्रॉब्लम नहीं होती है. The next benefit of exercise is we get a healthy body and a healthy mind. So when we do exercise, we not only get a healthy body, but also a healthy mind. Exercise improves our digestive system and provides more oxygen to our lungs. So exercise improves our digestive system. Digestive system का मतलब है हजम करने की जो क्षमता. तो जब जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने की क्षमता. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा जो खाना हजम करने की क्षमता है या फिर जो खाने को पचाने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होती है और इसीलिए हमें गैस, एसिडिटी वगैरह ऐसे जो पेट के प्रॉब्लम्स है वो सारे कम होते हैं. इसके अलावा इट प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन टू आवर लंग्स. तो हमारे लंग्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है क्योंकि हम हमारे एक्सरसाइज करने के दौरान हम लंबे लंबे सांसें लेते हैं. तो जब सांसें लंबी होती हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाता है
और ये हमारे सेहत को फायदा पहुंचाता है। अब जानते हैं रूल्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में। तो अगर हम सही समय पे, सही जगह पे और सही पोजीशन पे, सही टेक्निक के साथ एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे सेहत को एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज के रूल्स क्या है। लेट अस नो द रूल्स ऑफ एक्सरसाइज। The first rule of exercise is it should be taken in open place where more oxygen is available. It means that जब भी हम एक्सरसाइज करें तो हमेशा वो खुली जगह में करनी चाहिए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल हो। अब घर के अंदर उतना ज्यादा ताजी हवा जो है नहीं मिल पाती है। घर के बाहर ही ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करें हमेशा खुली जगह पे, इन एन ओपन प्लेस, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। The second benefit of exercise is it should be done either in early morning or in the evening. तो एक्सरसाइज हमें कब करनी चाहिए? या तो एकदम सुबह को जैसे 6 या 7 बजे, 5 या 6 बजे, या फिर शाम को। दोपहर में हमें कभी भी कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। Third rule of exercise is we should not do physical exercise after having food. खाना खाने के बाद हमें कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब हम खाना खाते हैं तब हमें हमारे इंटेस्टाइन को, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हजम करने का जो क्षमता है, हमारे इंटेस्टाइन को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए ताकि वो खाने को अच्छी तरह से पचा सके, हजम कर सके। तो इसके लिए काफी वक्त लगता है, इसीलिए खाना खाने के बाद कभी भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। The fourth rule of exercise is exercise should be moderate, regular and combined with pleasure. तो एक्सरसाइज ज्यादा हैवी नहीं होने चाहिए। हमें इस तरह का एक्सरसाइज करने चाहिए जो लाइट हो और जिसको हम रोज कर सके। अगर हम हैवी एक्सरसाइज चूज करेंगे तो उसको हम रोज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमें ज्यादा थकावट महसूस होगी। तो इसके लिए एक्सरसाइज शुड बी मॉडरेट। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है रेगुलर। इसका मतलब है रोज करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज एक दिन किया, 2 दिन गैप दिया या 3 दिन गैप दिया तो उस एक्सरसाइज से हमारे बॉडी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि नुकसान पहुंचेगा। और यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कंबाइंड विद प्लेजर। तो एक्सरसाइज हमें हमेशा खुश मिजाज होके करना चाहिए, हैप्पी माइंड के साथ करना चाहिए। हैप्पी माइंड के साथ अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारे बॉडी को और ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। The next rule of exercise is after exercise we should take rest for some time. एक्सरसाइज करने के बाद हमें थोड़ी देर तक आराम करनी चाहिए ताकि हमें जो थकावट हुई है उसको उस थकावट से हम उबर सके। The next rule of exercise is exercise should involve big muscles of the body. Now, in our body, there are different types of muscles. Some are big muscles, some are small muscles. तो big muscles कैसे होते हैं? For an example, जैसे कि हमारे कमर से लेकर हमारे घुटने तक का जो हिस्सा है, पाँव का जो हिस्सा है, वो है thighs. उसको कहते हैं thighs. That is a big muscle. वो बॉडी में, हमारे शरीर में एक बड़ा मसल है। अब हमारे जो बाजू होते हैं, जो आर्म्स होते हैं, वो भी एक बिग मसल है। तो हमें एक्सरसाइज इस तरह से करनी चाहिए, वो एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए जिससे हमारे ये जो बिग मसल्स है इनका भी एक्सरसाइज हो, तो ये बिग मसल्स और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। Next rule of exercise is
a variety of free hand exercises and exercises with apparatus should be included. हमारे एक्सरसाइजेस के लिस्ट में हम जितने भी एक्सरसाइज करेंगे उसके लिस्ट में ये दोनों तरह के एक्सरसाइज होनी चाहिए. Number 1 is free hand exercises. Number 2 is exercises with apparatus. अब free hand exercises क्या होते हैं? These are those exercises which we do without the support of anything. We do not carry anything in our hand while doing this kinds of exercises. जो exercises हम खाली हाथ कर सकते हैं उसको कहते हैं free hand exercises. अब यहाँ पे जो एक पिक्चर आप देख रहे हैं योगा पोजीशन. अब जो योगा एक्सरसाइजेस है उसको करने के लिए हमें किसी तरह की सामान को कैरी करने का या फिर किसी भी चीज के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती. हम ऐसे जो योगा एक्सरसाइजेस हैं इसको हम खाली हाथ कर सकते हैं. इसके बाद जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया. तो ऐसे जॉगिंग रनिंग को भी हम खाली हाथ ही करते हैं. हमें किसी चीज के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है. अब जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरे टाइप का एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइजेस विद एपरेटस. एक्सरसाइजेस विद एपरेटस मतलब एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी चीज की मदद लेना. तो जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक लड़का यहाँ पे डंबल लेके एक्सरसाइज कर रहा है. तो जिम में हम जब भी जाते हैं या फिर जब जो लोग जिम में जाते हैं, जिम में तरह तरह के मशीन्स होते हैं, तरह तरह के सामान चीजें होते हैं जिसके सहारे लोग एक्सरसाइज करते हैं. तो वैसी उस टाइप की जो एक्सरसाइजेस है उसको वो सारे एक्सरसाइजेस विद एपरेटस के अंडर आता है. इसके अलावा स्किपिंग. अब स्किपिंग जब हम करते हैं तो हम खाली हाथ नहीं कर सकते. उसके लिए हमें क्या चाहिए? रस्सी. एक रस्सी के सहारे हम स्किपिंग कर सकते हैं. तो ये भी एक्सरसाइजेस विद एपरेटस ही है. तो ये दोनों तरह के एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस एज वेल एज exercises with apparatus should be included in the list of our exercises. Next point of rules of exercise is exercise should be selected in such a way that each body part gets adequate exercise. हमें exercises इस तरह से चूज करने चाहिए, वो सारे exercises करने चाहिए जिनसे हमारे शरीर के हर एक हिस्से का एक्सरसाइज हो. कोई भी हिस्सा एक्सरसाइज के दौरान बाकी नहीं रहना चाहिए. The next point is one should not take bath in cold water after doing exercise. तो हमें एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद कभी भी ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए. इसका कारण ये है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारा जो शरीर है उसमें गर्मी पैदा होती है और इसके तुरंत बाद जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है. हमें ठंड भी लग सकती है, सर्दी लग सकती है. इसीलिए कभी भी एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए. Another rule of exercise is morning walk is a very useful exercise for old and infirm persons. अब मॉर्निंग वॉक तो सभी करते हैं, बूढ़े जवान सभी करते हैं, पर किन लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है? ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो बूढ़े लोग हैं. अब बूढ़े जो लोग हैं उनको चलने फिरने में तकलीफ होती है, वो ज्यादा भारी काम नहीं कर सकते हैं. तो उनके लिए एक्सरसाइज जो मॉर्निंग वॉक है वो बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है और ये उनके सेहत को बहुत फायदा पहुंचाती है. दूसरा जो है इन्फर्म पर्सन्स का मतलब है वो लोग जो बूढ़े नहीं भी हो
फिर भी उनको चलने फिरने में या कोई भारी काम करने में तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मॉर्निंग वॉक एक बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रुप एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी इंक्लूडेड इन एक्सरसाइज। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें अकेले एक्सरसाइज करने में कभी भी मजा नहीं आता है, बहुत बोरिंग सा लगता है। तो जब हम ग्रुप में एक्सरसाइज करेंगे, कुछ लोगों के साथ, सबके साथ मिल के एक्सरसाइज करेंगे, तब हम उस एक्सरसाइज को एंजॉय भी करेंगे और हमारे शरीर को उससे बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचेगा। जैसे हमने पिछले कुछ पॉइंट्स में पढ़ा था कि एक्सरसाइज शुड बी कंबाइंड विद प्लेजर, खुश मिजाज होके। तो ग्रुप एक्सरसाइज करने से हमारा जो माइंड है वो हैप्पी होता है और हमें हमारे जो बॉडी है उसको और ज्यादा फायदा पहुंचता है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद एक्सरसाइज का ही एक हिस्सा है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उस दौरान हम भागा दौड़ी करते हैं, जंपिंग करते हैं और हमारे शरीर का एक्सरसाइज होता है। तो एक्सरसाइज के लिस्ट में ग्रुप एक्सरसाइज and games and sports should also be included. The next point is spot running, jogging and skipping are basic exercises to get physical fitness. तो ये जो तीन तरह की एक्सरसाइजेस है, स्पॉट रनिंग, जॉगिंग एंड स्किपिंग, ये तीन तरह की एक्सरसाइजेस सबसे आसान तरीका है अपने बॉडी को फिट रखने का और ये हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब स्पॉट रनिंग क्या होते हैं? स्पॉट रनिंग मीन्स रनिंग ऑन द स्पॉट, एक ही जगह में खड़े होके भागना। आमतौर पे जब हम दौड़ते हैं तो आगे की तरफ मूव करते हैं, पर स्पॉट रनिंग में एक ही जगह पे खड़े होके भागना है। अब यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पे जो दो लोग आप देख रहे हैं, वो एक जगह पे खड़े होके भाग रहे हैं। तो ऐसे इसको कहते हैं स्पॉट रनिंग। ऐसे करने से हमारा जो पाँव का जो हिस्सा है, कमर से लेके पाँव, थाइस का, घुटने का, एड़ियों का, फिर पेट के निचले हिस्सों का, बाजुओं का, हमारा जो आर्म्स है, उन सारे हिस्से का बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज होता है। इसके बाद जॉगिंग। जॉगिंग का मतलब होता है दौड़ना। जो नॉर्मली जैसे हम दौड़ते हैं उसको कहते हैं जॉगिंग। तो ये एक बेसिक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हम बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्किपिंग। तो ये जो तीन तरह की एक्सरसाइजेज है, इसको करने के लिए हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जिम में जाने की जरूरत नहीं है। हम आसानी से अपने घर के बाहर जो छोटी सी जगह है, खुली जो जगह है, वहां पे ही हम ये तीन तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं और हमारे बॉडी को इजीली फिट रख सकते हैं। The next point is, in all physical exercises and games, correct breathing is very important. हर तरह की एक्सरसाइज में, फिजिकल एक्सरसाइज में और गेम्स में सही ब्रीदिंग, सही सांस लेने की जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सही तरह से सांस नहीं लेंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो उसका लेवल कम होता रहेगा और हम सही तरीके से सांस लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा और जो पॉइजनस जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ज्यादा से ज्यादा बाहर आएगा और ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखेगा। अब सही टेक्निक क्या है सांस लेने की? वो ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो पूरी तरह से, अच्छी तरह से लंबे सांस लेकर ऑक्सीजन को अपने लंग्स में भर लेना है और जब हम अच्छी तरह से
ऑक्सीजन को लंग्स में भरते हैं, अपने फेफड़ों में भरते हैं, तो हमारा पेट आगे की तरफ बढ़ता है, आगे आगे की तरफ निकलता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो उसको अच्छी तरह से बाहर निकालना है और इस दौरान हमारा पेट अंदर जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम सही टेक्निक का इस्तेमाल करें जब हम सांस लें। अब आगे जो आप देखने जा रहे हैं, ये जो है, ये है सांस लेने की टेक्निक। खासकर तब जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, उस दौरान हमें इस टेक्निक का, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए सांस लेने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ब्रीद इन का मतलब है सांस अंदर लेना। फिर होल्ड इट फॉर 7 सेकेंड्स। ब्रीद आउट, धीरे धीरे सांस को छोड़नी है 8 सेकेंड तक। तो ब्रीद इन फॉर 4 seconds, breathe in for 4 seconds, hold it for 7 seconds and breathe out for 8 seconds. आइए एक बार करके देखते हैं ये एक्सरसाइज। Let us start now. Breathe in. Now hold your breath. रोक के रखिए सांस को। अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए और एक बार करते हैं। Breathe in. Now hold your breath. Slowly. अब सांस को छोड़िए धीरे धीरे। तो ये है ब्रीदिंग का टेक्निक जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं। और ऐसे सांस लेने से ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अच्छी तरह से हमारे अंदर से, हमारे लंग से निकलेगा। So that's all for today. Thank you for watching my video. If you like the content of my video, kindly hit the like button and please don't forget to subscribe to my channel to get updates on my upcoming videos.